रथ यात्रा के दिन सियारसोल गांव के कोलकोली मोहल्ले में एक दिहाड़ी मजदूर के परिवार के घर में बीते रात मोमबत्ती की आग से घर पर आग लग गई और जो कि फैल गई। दिहाड़ी मजदूर के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इसी बीच उस दिहाड़ी मजदूर परिवार के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना के संदर्भ में ज्ञात हुआ है कि सांत्वना बावरी बीमार पति और अपनी पुत्री के साथ बीमार पति के लोगों के घरों में नौकरानी का काम कर गृहस्थी चलाती थी और थोड़ा थोड़ा करके उनके इलाज के लिए 10,000 रुपये जमाती थी। घर में भारी आर्थिक तंगी के कारण बिजली के बकाया बिलों के कारण बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। इसीलिए गरीब परिवार मोमबत्ती के ही लाइट से अपना जीवन यापन कर रहा था और आखिरकार उसी मोमबत्ती की वजह से पूरा घर जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर रानीगंज थाना की पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस भी पहुंच गई। वहां से रानीगंज फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না? না, আমার বাবা ছিল, দেখেনে ঘুমাই গেছে। ও নিয়ে আপনি কখন দেখলেন? আমি লোকের বাড়িতে ছিল। নিয়ে কখন এলেন আপনারা? কখন জানতে পারলেন? উল্লাম বলে মেয়েটা আমার স্বামী ডাকতে গেছিল দৌড়ে, তখন চিৎকার করে উঠলো সবাই, গোটা পাড়ার লোক নেমে আনছে। ঘরের সব পুড়ে গেছে? হ্যাঁ, আমার কাগজপত্র সব পুড়ে গেছে, আমার রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড। তো আর ঘরে অন্য কেউ ছিল না? মেয়ে ওরাও দেখেনি? না, আমার ননদ দুজনের পাশে ছিল, ওরা কি করে জানবে ওরা যে দেখেছে কিনা, আমি তো জানি না। আগুনটা লেগেছে? হ্যাঁ, মামাই। কি করেন আপনি? আমি ইয়াতে কাজ করি, খেলাতে। আর স্বামী কি করে? রাজমিস্ত্রি। কি নাম আপনার? সান্তনা বাবু। স্বামীর নাম কি? সোনা। সিয়ারসোল কুলকুলিপাড়া 34 নম্বর ওয়ার্ড। নাম হচ্ছে সান্তনা বাউরি। প্রান্তিক মানুষ, লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে সংসার চালায়। স্বামীও অসুস্থ, স্বামী সেভাবে কাজকর্ম করতে পারে এবং এই বাড়িতে ইলেকট্রিক কানেকশন আগে ছিল, কিন্তু বিল না দেওয়ার ফলে ইলেকট্রিক কানেকশন তাদের কেটে গেছে। আজকে হচ্ছে কি রথের মেলা, সবাই ঘুরে ঘাড়ে এসছে। তারপর হচ্ছে যেহেতু বাড়িতে লাইন নেই, বাইরে সবাই শুয়েছিল, ঘরের ভেতরে একটা আপনার মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতিটা কোনোভাবে পড়ে গিয়ে বাড়ির মধ্যে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। পাড়ার লোকেরা যখন চিৎকার করতে শুরু করে তখন দেখা যায় দাউড়াউড় করে বাড়ি আর কি জ্বলছে। বাড়িতে যা কিছু ছিল, মানে পরনের কাপড় পর্যন্ত সমস্ত কিছু পুরো একদম ছাই হয়ে গেছে। একদম গরিব অংশের মানুষ একদম অসহায় অবস্থায় পড়লো আর কি। হচ্ছে ব্যবস্থা পাড়ার ছেলেরা যারা আছে ভয়ঙ্কর রকম তারা কাজ করেছে আর কি, যেভাবে করা যায় সমস্ত পাড়ার ছেলেরা মিলে আগুনটা কীভাবে নেভানো যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ার ছেলেরা লিভিয়েছে। ম্যাক্সিমামটা লেবানোর পর দমকলকে সঙ্গে সঙ্গে, আমি যখনই খবর পাই দমকলকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিই, দমকলে চলে আসে, স্থানীয় প্রশাসনে চলে আসে, পুলিশে আসে। দমকল এখন এসছে, লেবানোর কাজ বাকি যতটুকু আছে লেবানোর চলছে। প্রাথমিক যে লেবানোর যে কাজটা ছিল সেটা কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলের, আমাদের কুলকুলিপাড়ার ছেলেরা যারা আছে তারা সবাই মিলে আর কি। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। विगत 1 महीने से बांकुड़ा जिला भीषण गर्मी का प्रकोप का सामना कर रहा है, जिससे लोगों को समस्या के सम्मुख होना पड़ रहा है। कुएं, तालाब से सूख जाने एवं जल का स्तर नीचे जाने से पेयजल की समस्या भी उत्पन्न हुई है। ऐसे ही कुछ समस्याओं को सामने रखकर मां कामाख्या के निकट वर्षा की कामना को लेकर जय बाबा पातालेश्वर नामक आश्रम की तरफ से लगभग 25 साधुओं का एक दल कामाख्या मंदिर की ओर रवाना हुआ। इस बारे में आश्रम के सदस्यों में निमाई दास एवं राजू माल ने कुछ बातें कही। প্রার্থনা করব। এই আমাদের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে প্রচণ্ড গরম, 45 পঞ্চায়েতে ঢুকে গেছে। এটা জল নাই, বৃষ্টি নাই, সব কিছু নাই। মানুষের মঙ্গলের জন্যে বাঁকুড়ার তো কোনো আশা ঘটে যাচ্ছে কেন, মায়েরা মঙ্গল করে। সবার কাজ যদি মঙ্গল হয় তাহলে আমাদের মঙ্গল হবে। 50 জায়গায় 40 ডিগ্রি কিনে 60 ডিগ্রি হোক, তাও যাবো। কিন্তু জল আমাদের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে আষাঢ় মাসের 7 তারিখের আগেই জল হবে। সবাইকার মঙ্গল হোক, মা কামাখ্যা দেবী আশীর্বাদে তাই যাচ্ছি মায়ের কাছে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন? হ্যাঁ, প্রার্থনা করি।
আপনারা কতজন যাচ্ছেন এখান থেকে? এখানে ধরুন মোটামুটি আমরা 20-25 জন যাবো। এখন তো আমরা সব সাধুগুলো আসো না, সব কাজে নিজের ব্যস্ত আছে। এখন এগুলো আমরা আছি, আরও আসছে। আপনার নাম? আমরা রাজু মালাকা। শিব কমিটির থেকে পাতালেশ্বর, বাবা পাতালেশ্বর কমিটির থেকে আমরা যাচ্ছি। খুব গরম বাঁকুড়ায়, তার জন্য মায়ের খানে আমরা প্রার্থনা করতে যাচ্ছি। जिसे বাঁকুড়াতে আমাদের বৃষ্টি হয়, এইটাই মায়ের খানে আমরা প্রার্থনা করব। প্রায় 40-50 ডিগ্রি কাছাকাছি ঢুকে গেছে, তার জন্য আমরা কাউর কামাখ্যা যাচ্ছি মায়ের খানে প্রার্থনা করতে। মানে সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, এইটাই আমরা মায়ের খানে কামনা করব, প্রার্থনা করব। আপনার নাম? নিমাই দাস। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। काम की मांग को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर के निजी फैक्ट्री के सामने धरना दिया। बाहरी लोग कार्यबल में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग वंचित हैं। इसके विरोध में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह दुर्गापुर के सागरभांगा में निजी फैक्ट्री के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सूचना मिलने पर कोकोबन थाने के पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस का आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी फैक्ट्री से हटे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लंबे समय से कारखाने के पास रह रहे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि बाहर के लोगों को भर्ती की जा रही है। 28 এবং 29 দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই লড়াই চলছে, প্রায় বছর 2-2.5। বারবার নেতা মন্ত্রী শান্তিদেরকে বলো, আমাদের লিস্ট জমা করেছি, এখনো পর্যন্ত কোনো বেকার ছেলেদের রিক্রুটমেন্ট হয় না। তবে ছাই কালি গ্যাস থেকে শুরু করে আমাদের সব এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা খাচ্ছে, প্রচুর রোগ জ্বালা সবই শুরু হয়েছে। এখনো পর্যন্ত তারা একটা কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, এই দেখবো করে ছেড়ে দিচ্ছে। সেই হিসাবে আমাদের বিক্ষোভ। হ্যাঁ, কার কাছে গিয়েছিলেন বলতে যে চাকরির জন্য? ম্যানেজমেন্টের কাছে। আর যারা লিডার আছে তাদের কাছে? মৌখিক ওনারা জানেন, ওনাদের কাছে পাঠিয়েছি, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। না, বাইরে থেকে লোক আসছে, বাইরে থেকে লোক অনেক সময় রাতের অন্ধকারে নিয়োগ করে নিচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। কি মনে হয় আপনারা তো রাজ্যের ক্ষমতায় আছেন, তারপরে বাইরে থেকে লোক রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, অথচ আপনারাই তৃণমূল করেন, আপনারাই। সেই হিসাবে আমাদের লড়াই চলছে স্থানীয় বেকারদেরকে নিয়ে। আজকে আপনারা কি কর্মসূচি নিয়েছেন? সেই লড়াই আমরা আজকে সামিল হয়েছি, যে দেখি ম্যানেজমেন্ট কি বলে কি না বলে। আমরা পুলিশ প্রশাসনকে জানবো, আবার আপার লেভেলকে আমরা আবার জানাবো। কি নাম আপনার? কিশোর কুমার চক্রবর্তী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে, এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস। অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 1 स्थित मदनतोड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत सीट नंबर 5 पर इस पंचायत समिति पर तृणमूल कांग्रेस को जीत आसान नहीं है। इसी सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अनिमेश बैनर्जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिला किया और इसी ग्राम पंचायत समिति से भाजपा के उम्मीदवार जय गणेश सिंह भी अपने शानदार जीत हासिल करने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसलिए ये राह शासक दल के उम्मीदवार को इस सीट पर जीत हासिल करना उतना आसान नहीं है। जब इन दोनों से बात की गई तो इसे लेकर जानकारी देते हुए मदनतोड़ ग्राम पंचायत समिति के भाजपा उम्मीदवार जय गणेश सिंह ने कहा कि हम लोग भाजपा के सैनिक हैं। इतने सालों में इस ग्राम पंचायत इलाके में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और तालाब कटाई में केवल तृणमूल कांग्रेस के लोग द्वारा इन सभी ने दुर्नीति हुआ है। इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के 2 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन जो पहले इस सीट पर अपना पर्चा जमा किया था उन्हें ना देकर अचानक दूसरे लोगों को ये सीट दे दिया गया। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। वहीं इसे लेकर जानकारी देते हुए पंचायत समिति के उम्मीदवार अनिमेश बैनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद भाजपा और माकपा का अस्तित्व खत्म हो चुका है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट कराने में विश्वास रखते हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद ग्रामीण इलाके में रास्ता, बिजली, पानी, तालाब की खुदाई एवं गरीब लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य का रोजगार, इसके अलावा जो हमारे विरोध में इस ग्राम पंचायत चुनाव में खड़े हुए
उसे राज्य सरकार की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा रहा है। एवं साथ ही उन्होंने और भी कई बातें की। हम लोग तो मोदी जी के सैनिक हैं। हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव है जो आपका दुर्नीति है उसको रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए। और वो लोग जो खड़ा हो रहे हैं, वो लोग चोरी करने के लिए खड़ा हो रहे हैं। इसीलिए आपस में देखिएगा, झंटू मंडल जो कि जिसको टिकट मिल गया था, आज दीवार में लिखा भी हो गया था, लेकिन उसके बदले में दूसरे को मिल गया। जो आपका मेरा जो बापटूदा है, अच्छा है बापटूदा, अनिमेष बनर्जी है। पहले झंटू मंडल को मिला था, इसके बाद अनिमेष बनर्जी को मिला। इसी में पता चलता है कि ये जो लोग हैं अभी, ये लोग चाहते हैं कि 5 साल अगर रह गया सत्ता में तो हम लोग को 5 साल देखने नहीं चाहिए, एकदम पूरा। मतलब 5 साल में माला माल हो जाएंगे। और हम लोग जो है, हम लोग दुर्नीति रुकने के लिए है। आप अगर देखिएगा, अब देखें आप पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो जिसका आपका ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसको मिला नहीं। आप कभी भी पूरा इलाका घूम सकते हैं, मंडल 1 नहीं मिला। किसको मिला? जिसका मकान है उसको मिला। अब देख के आइए, हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, उसमें पता चला, आप देखें कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जिसको घर मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, ज़्यादा से कट मनी में गया। तो ये लोग खड़ा हो रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग को कोई डर नहीं है। हो सकता है किसी को धमकाने चमकाने की कोशिश किया, लेकिन उतना दम नहीं है कि हमको डरा देंगे धमका देंगे। हम लोग उसमें हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम लोग भाजपा के हैं, हम लोग मोदी जी के सैनिक हैं, और हम लोग डट से मुकाबला करेंगे। अगर आदमी ठीक से वोट दे पाए तो PS5 से हम लोग विजय होंगे। आपका नाम? जयगन सिंह, जमड़े मंडल 1 के प्रेसिडेंट। भाजपा CPM हम लोग को अंचल में इतना नहीं है कुछ, ठीक है। जो है वो एक ही है और कुछ नहीं है। और दीदी का जो उन्नयन है, वो उन्नयन का भागीदार वो भी है। देखिए उसका घर में पूछिए ना जाके, स्वास्थ्य साथी है, लक्ष्मी भंडार है, ये सब तो फैसिलिटी दीदी के उन्नयन से होता है। तो आदमी जो देखेगा वहाँ का, जो सोचेगा, वो तृणमूल छोड़ के किसी को पहचानता नहीं। लिखिए ना कितना विकास हुआ, अभी भी काम चल रहा। जो पदश्री जो रास्ता है, ढला रास्ता हुआ, गांव का जितना ढला रास्ता वो हो गया, ड्रेन हो गया। कितना उन्नयन चाहिए बोलिए? दीदी का उन्नयन तो लगातार रहता है। अभी रिसेंट जो पथश्री है वो भी काम चल रहा, बड़ा काम। जो जितना काम है बाकी है वो हम कर देगा, कारण कि हम अगला पीछे 5 साल हम कर्मद सकते हैं, पंचायत समिति का मेम्बर थे। अब जाके देखिए ताराडंगा, मोदूडंगा, मोदंतर में अब लोग जाके सब मालूम चलिए क्या काम हुआ। कुछ भी काम नहीं है। इतना 34 साल में काम नहीं हुआ जो हम करके दिखाए हैं। दीदी का आशीर्वाद से हम बहुत सारे कर दें। अगला जो आशीर्वाद हमको आने जा रहा, वो हम जो जितना जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। आपका नाम? अनिमेष बनर्जी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुर्गापुर पतंजलि योग समिति की ओर से बुधवार की भोर में दुर्गापुर नगर इस्पात के वीजोन स्थित शिल्पायन में योग शिविर कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर महिला समिति के कोऑर्डिनेटर कावेरी मुखर्जी, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर निरोध बरन हाजरा सहित योग शिविर में पतंजलि के सदस्य छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया। पतंजलि योग समिति की ओर से गुरु को सम्मानित किया गया। इसके बाद उपस्थित योग सदस्यों को प्रणाम के नियम को बताया गया, किस तरह से करना चाहिए और इसके लाभ के बारे में भी बताया। निरोध बरन हाजरा ने बताया कि स्वामी रामदेव के द्वारा दुर्गापुर पतंजलि योग समिति 2007 से चल रही है। दुर्गापुर शिल्पांचल के विभिन्न इलाके में ही कैंप किया जाता है। निःशुल्क कैंप के माध्यम से काफी लोग स्वस्थ हुए हैं।
प्राणायाम के साथ अगर आहार को ठीक किया जाए तो बीमारी सामने नहीं आएगी, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ योग प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा भी दुर्गापुर के विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित की गई है। প্রত্যেকটা শ্বাস ছাড়বো মনে মনে আমরা প্রাণায়ামের 7 মন্ত্র বলতে পারি এবং অনুলোম বিলোম করলে ঠিক হয়ে যায়। তবে হাই প্রেশার হার্টের সমস্যার ক্ষেত্রে কপালভাতি প্রথম অবস্থায় করা যায় না, তারপর করা যায়। আমাদের যদি দীর্ঘদিনের যদি কোনো সমস্যা এই যোগ দিবস কি করছেন আজকে? আজকে কাদের পক্ষ থেকে হচ্ছে আর কি করছেন? আজকে এই যোগ দিবসটা গোটা পৃথিবীব্যাপী আজকে অভ্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের দেশে স্বামী রামদেবজি মহারাজের নেতৃত্বে এবং গোটা পৃথিবীতে এই যোগকে কেন্দ্র করে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক সামাজিক সব কিছুর একটা পরিবর্তনের একটা সুযোগ আমাদের কাছে এসছে। তাই প্রত্যেক বছর এই দিনটিকে আমরা পালন করি। আজ কি হচ্ছে, মানে কি করাচ্ছে না কি ইন্টারন্যাশনাল যোগ ডের একটা প্যাকেজ আছে যেটা অভ্যাস করতে হয়, সেটাই ছাত্র এবং সমস্ত মানুষকে শেখানো হচ্ছে। যোগের পাঠ তাদের পড়ানো হচ্ছে, দেখানো হচ্ছে, যাতে করে এই কটা অভ্যাস করলেই তারা সুস্থ থাকতে পারবে। কি মেসেজ দেবেন? যে যোগের আশ্রয়ে আসুন, সমস্ত মানুষকে যোগের আশ্রয়ে আসুন, কারণ আজকে 200টা দেশ এটার গুরুত্ব বুঝেছে এবং তারা এগিয়ে এসছে। স্বাভাবিক কারণে আমাদের দেশকে তো আরও বেশি এগিয়ে যেতে হবে। তো করোনাতে অনেকখানি আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আবার সেটাকে রিকভারি করতে হবে। দুর্গাপুরে কোন মানে এই সংস্থার কি দিয়ে হচ্ছে? পতঞ্জলি যোগ সমিতির তত্ত্বাবধানে এটা হচ্ছে। তো আমাদের দুর্গাপুরের পতঞ্জলি যোগ সমিতির যে শাখা, তার দ্বারাই এটা পরিচালিত হচ্ছে। আপনার নাম? নীরদ বরণ হাজরা, ভারত স্বাভিমান ট্রাস্টের चीफ कोऑर्डिनेटर। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जिले के कोने कोने में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। योग शिविर में छोटे बड़े सभी लोगों ने हिस्सा लिया। बांकुड़ा रेलवे स्टेशन प्रांगण से संलग्न बीडीआर प्रांगण में बांकुड़ा संसद कार्यालय की पहल पर योग शिविर लगाया गया, जहां मौके पर बांकुड़ा रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृतिवास आनंद जी महाराज, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री एवं बांकुड़ा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार, बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना, भारतीय डाक विभाग के अधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने योग अभ्यास किया। जहां दूसरी तरफ बांकुड़ा पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पालन किया गया, जो कि बांकुड़ा मुख्य डाकघर प्रांगण में आयोजित हुआ, जहां उपस्थित बांकुड़ा मुख्य डाकघर के वरीय पोस्ट मास्टर अनुरुद्ध विश्वास, अधिकारी विश्वजीत राय समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर अनुरुद्ध विश्वास ने कुछ बातें कही। इसके अलावा बांकुड़ा क्रिश्चियन कॉलेज के प्रांगण में एनएसएस यूनिट एवं एनसीसी यूनिट के संयुक्त प्रयास से योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर बैनर्जी ने लोगों को योग कराया। मौके पर उपस्थित एनएसएस अधिकारी डॉक्टर सच्चिदानंद रॉय, प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय चैटर्जी, सुश्री सुतपा मंडल समेत अन्य अध्यापकगण उपस्थित रहे। দেখুন, বিশ্ব যোগ দিবসে এই যে 9 বছর ধরে হচ্ছে, আর সেই 9 বছর ধরে এক বছরের পরে পরের বছর এই যোগ দিবস সারা পৃথিবী জুড়ে তার ব্যাপকতা পাচ্ছে। আর আমরা জানি এবছর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি রাষ্ট্রসংঘে নিউ ইয়র্কে যে রাষ্ট্রসংঘের কার্যালয় আছে সেখান থেকে যোগা করবেন এবং বিশ্বের সমস্ত দেশ তারাও যোগা অভ্যাস করছে। আর আমরা ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের সুস্বাস্থ্য কামনা করি। এবারের যোগ দিবসের থিম হচ্ছে বসুধৈব কুটুম্বকম। এটা সবথেকে বড় কথা যে সারা পৃথিবী আজকে আমাদের সংস্কৃতি সেটা যে একেবারে মানব সভ্যতার অনুকূলে সেটা সবাই স্বীকার করছে, মান্যতা দিচ্ছে।
কতটা প্রয়োজন যোগ? যোগ সমস্ত মানুষের মানে দৈহিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং দৈহিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য প্রতিদিন স্বল্প সময় যোগাভ্যাস জরুরি। এই বার্তা আমরা সমস্ত মানুষের কাছে দিতে চাই। যোগাটা কতখানি প্রয়োজন কি বলবেন? এটা আমরা ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া হেড পোস্ট অফিস প্রাঙ্গণে আমরা মোটামুটি 50-55 জন মিলিত হয়েছি এই যোগ শিবিরে। আমাদের যোগগুরু হিসেবে উপস্থিত আছেন অরুণাভ চট্টরাজ মহাশয়। উনি আমাদের এই পুরো যোগ শিবিরটা পরিচালনা করেছেন এবং এটা আজকে সফলভাবে এখানে সম্পন্ন হয়েছে। আজকের দিনে যেখানে মানে প্রচুর রোগ আমাদের বাসা বেঁধেছে, অফিসে কাজের সুবাদে হোক বা বিভিন্নভাবে আমাদের হাড়ের ব্যথা, স্পন্ডাইলাইটিস, কোমরে ব্যথা, এই যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথাগুলো উৎপত্তি হচ্ছে একটানা অফিসে কাজ করার পরে, আর এই যোগের মাধ্যমে আমরা সেই ব্যথাগুলো থেকে মুক্তি পেতে পারি। এবং এই উদ্দেশ্যে সবাইকে সচেতন করতে আমরা হেড পোস্ট অফিস প্রাঙ্গণে নবম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আমরা এই শিবিরটার আয়োজন করেছি, যাতে সবাই সচেতন থাকে এবং এই যোগ পালন করে। আপনার নাম পরিচয়টা একটু? আমার নাম অনিরুদ্ধ বিশ্বাস, সিনিয়র পোস্টমাস্টার, বাঁকুড়া হেড পোস্ট অফিস। থ্যাংক ইউ। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। श्यामसिल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन के तहत CSR के अंतर्गत 12 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कंपनी के कर्मचारी एवं आसपास के ग्रामीण बच्चों तथा महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वासियों एवं प्लांट के कर्मचारियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है। योगा दिवस में जामुड़ी एवं मंगलपुर प्लांट के कुल 120 तथा ग्राम अंचल से 60 लोगों ने भाग लेकर इस शिविर को सफल बनाया। सभी लोगों ने ये प्रण लिया कि योग को अपनाते हुए हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे एवं दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। शिविर को सफल बनाने में कंपनी के सुमित चक्रवर्ती, HR एवं एडमिन डिपार्टमेंट के अमित कुमार मंडल, साकिब अहमद, कौशिक गोस्वामी, संदीप गुप्ता एवं CSR डिपार्टमेंट के उर्मिला चैटर्जी, प्रीति मुखर्जी एवं शिल्पी मुखर्जी की भूमिका रही। योगा शिक्षक के रूप में कंपनी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के मौमिता रॉय एवं मंगलपुर के योगा शिक्षक सुशांत घोषल उपस्थित रहे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। श्यामसिल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन के तहत CSR के अंतर्गत 12 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कंपनी के कर्मचारी एवं आसपास के ग्रामीण बच्चों तथा महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वासियों एवं प्लांट के कर्मचारियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है। योगा दिवस में जामुड़ी एवं मंगलपुर प्लांट के कुल 120 तथा ग्राम अंचल से 60 लोगों ने भाग लेकर इस शिविर को सफल बनाया। सभी लोगों ने ये प्रण लिया कि योग को अपनाते हुए हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे एवं दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। शिविर को सफल बनाने में कंपनी के सुमित चक्रवर्ती, HR एवं एडमिन डिपार्टमेंट के अमित कुमार मंडल, साकिब अहमद, कौशिक गोस्वामी, संदीप गुप्ता एवं CSR डिपार्टमेंट के उर्मिला चैटर्जी, प्रीति मुखर्जी एवं शिल्पी मुखर्जी की भूमिका रही। योगा शिक्षक के रूप में कंपनी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के मौमिता रॉय एवं मंगलपुर के योगा शिक्षक सुशांत घोषल उपस्थित रहे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।
रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ने एक बार फिर जरूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए एक पहल की है। मारवाड़ी अस्पताल की ओर से अस्पताल परिसर में एक जेनरिक मेडिकल शॉप का उद्घाटन हुआ। इस शॉप का लाभ केवल अस्पताल के मरीज ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी उठा सकेंगे काफी किफायती कीमत पर। इस मौके पर मुख्य रूप से बोरोदो के चेयरमैन शहजादा अंसारी, आरपी खैतान, रमेश कुमार झुंझुनवाला, ललित कयाल, विवेकानंद सेवा आश्रम के समीर कर्मकार समेत और भी कई गणमान्य व्यक्तिगण मौजूद रहे। রানীগঞ্জ মারোয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হসপিটালে আজকে বিশেষ কি মানে ইনোগ্রেশন পর্ব কিসের হলো? আজকে রানীগঞ্জ মারোয়াড়ি সোসাইটি হসপিটালের ইতিহাসে আর এই প্রথম ওষুধ দোকান নিজস্ব খোলা হলো। তো অনেক দিন আমরা চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক কাউকে দোষ দেব নাই, আমাদেরই দোষ যে ওটা আমরা খুলতে পারিনি। এখন সবচেয়ে বড় জিনিস হলো মারোয়াড়ি সোসাইটির একটা গুডউইল আছে। সবাই জানে যে এইখানে ভেজাল কিছু নেই, এরকম যা পাওয়া যাবে এক নম্বর ওষুধ পাওয়া যাবে, ন্যায্য দামে পাওয়া যাবে। আমরা এদিকে বলেছি, যাকে আমরা লিস্ট দিয়েছি সুনীল লোহারওয়ালাকে, তাকে আমরা বলেছি ভাই জেনারিক মেডিসিনও রাখো। আপামর জনসাধারণ যারা গরিব, যারা পকেটে পয়সা নেই, তারা এই 10 টাকার জিনিস 80 টাকায় বিক্রি হচ্ছে সে বড় বড় কোম্পানি। জেনারিক মেডিসিন 10 টাকার জিনিস 15 টাকা, 12 টাকা, 16 টাকা বিক্রি হচ্ছে। তো এরা যদি রাখে, ডাক্তাররা লিখলে হবে তো? उसकी तो আপনারা বুঝতে পারছেন, আগেকার কথা তো বলতে পারছি না, ডাক্তাররা কেনে লিখবে না? प्रिस्क्रिप्शन में মানে डॉक्टर लिखना चाहिए, लिख दे तो जेनरिक मेडिसिन लोग रखना शुरू करेगा। तो खास करके रानीगंज मारवाड़ी सोसाइटी का जो उद्देश्य है कि गरीबों का उपकार होना चाहिए। यहाँ पर सब चीज़ बहुत कम दाम में हम लोग देते हैं। बाजार में जो चीज़ का जो डॉक्टर 500 रुपये में देखता है, वो डॉक्टर यहाँ पर 80 रुपये में देखता है। जो इलाज बाजार में 40,000, 45,000, 50,000 रुपये में ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन यहाँ पर 25,000, 27,000 में होता है। इसीलिए यहाँ पर भीड़ लगा रहता है ऑपरेशन का वगैरह का, सब चीज़ का। सब सोनोग्राफी से लेके टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ बहुत सस्ते में और एकदम एक नंबर, कोई भेजाल नहीं। वो डॉक्टर बोले यहाँ पर ठीक नहीं होता है, क्यों बोलता आप लोग समझ रहे हैं? सबका क्या हिसाब है, मुँह से बोल नहीं सकते। স্যার মারোয়াড়ি হসপিটাল কর্তৃপক্ষ নিরন্তর সেবা করেই যাচ্ছে। এছাড়া যে আজকে যে শপটি উদ্ঘাটন হলো, সেই উদ্ঘাটনে মানে কে কে এসেছিলেন এবং জেনারিক মেডিসিন ছাড়া আর কি অ্যাভেলেবেল থাকবে স্যার? এখানে যত রকম মেডিসিন আছে সব জিনিস পাওয়া যাবে, এটা প্রতিশ্রুতি মানুষকে আমরা দিচ্ছি। আজকে উদ্বোধন করার জন্য রানীগঞ্জ বড়ো 2 চেয়ারপারসন জনাব মুজাম্মিল হোসেন শাহজাদা সাহেব নিজে এসেছিলেন। রানীগঞ্জে বিশিষ্ট আমাদের সমাজসেবী শ্রী রমেশ কুমার ঝুঁকিওয়ালা, যাদের বিশেষ অবদান এই হসপিটালে, এরাই জায়গা দান করেছে। আর সেই সময় 1000 টাকা দান করেছে, আজকে 50 কোটি টাকা এদের ফ্যামিলির অবদান। সে রমেশ ঝুঁকিওয়ালাজি উনিও মজুদ ছিলেন। আরেকজন ছিল রানীগঞ্জের আরেকজন বিশিষ্ট আর সমাজসেবী রাজকুমার কয়ালের বড় ছেলে ললিত কেয়াল, সেও ছিল। আমাদের বিবেকানন্দ সেবা আশ্রমের শ্রী সমীর কর্মকারও, সমীর রায়ও ছিল। বহুত মানুষ ছিল, তারা সবার ভালোবাসায় নিয়ে আমরা খুলেছি এটা। আশা করছি আমরা 6 মাসের ভিতরে এখানে এরকম কোনো ওষুধ থাকবে না যেটা পাওয়া যাচ্ছে না। তো একটু তো সময় লাগে না, ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে হবে। মানে যারা ওই কী বলে ফ্লোটিং কাস্টমার, তাদের জন্য বাইরে রেখেছি। ইন্টারনাল আমাদের ভিতরে, বাইরে থেকে যদি কেউ ভিতরে এসে নিতে চায় তাও বাধা নেই। এই করে আমরা চালাচ্ছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज बांग्ला पक्ष ने रानीगंज विधानसभा के साथ मिलकर रथ मेले में लगाए गए एक स्टॉल का उद्घाटन, दीप प्रज्वलन कर फीता काटकर बांग्ला पक्ष के जिला संपादक अक्षय बैनर्जी और सियारसोल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के संपादक हृदयलाल बैनर्जी समेत बांग्ला पक्ष के समस्त सदस्य गणों ने मिलकर के किया। स्टॉल का उद्देश्य है कि बांग्ला पक्ष के लोगों को इस बात का एहसास कराना कि संगठन हमेशा उनके लिए खड़ी है, उनके सहयोग में सदैव ही तत्पर है। इस स्टॉल में बांग्ला पत्रिका, टी शर्ट, बांग्ला पक्ष के हित की किताबें एवं इत्यादि चीजें मिलेंगी।
इस मौके पर मुख्य रूप से रानीगंज विधानसभा के संपादक बाप्पादित्य चक्रवर्ती, सह संपादक काजल दास गुप्ता, जिला कमेटी सदस्य दीपायन मुखर्जी, राजा मुखर्जी, प्रबीर माझी, सौरभ दत्ता, शिवब्रतो मुखर्जी उपस्थित रहे और कार्यक्रम में मुख्य योगदान दिया। জয় বাংলা, জয় বাংলা। ধন্যবাদ সকলকে। আজকে আমাদের এই স্টলটি উন্মোচন হলো, উন্মোচন হলো। আমি প্রত্যেক বিশিষ্টজনকে বলবো আমাদের স্টলের ভিতরে একটু প্রবেশ করতে, তাদের পায়ে ধরে আমাদের এটা আমাদের দীর্ঘ 5 বছরের কার্যকারী হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই সকলকে। এই বিষয়ে আমি আমার জেলা সম্পাদক পশ্চিম বর্ধমান সংলাপক্ষের অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলবো কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আজকের এই বিশেষ দিনটিতে। ধন্যবাদ সকলকে জানাই। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रथ यात्रा के अवसर पर जामुड़िया बोरोई के अंतर्गत वार्ड संख्या 7 स्थित इकड़ा चंडीपुर फुटबॉल मैदान इलाके के ग्राम निवासी के सहयोग से 2 दिवसीय हरिनाम भागवत पाठ आयोजन किया गया। मंगलवार की संध्या जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने प्रदीप जलाकर इस भागवत पाठ का शुभारंभ किया। भागवत कथावाचक वृंदावन से आई कंचन देवी, जशमीर सिंह एवं कौशिक अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। इस भागवत पाठ के तीसरे दिन मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस ग्राम एवं आसपास के इलाके के सैकड़ों जरूरतमंद भाग लेंगे। इस भागवत कथा के मौके पर जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह ने कहा कि यह भागवत कथा का आयोजन बहुत ही शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम को समय समय पर इलाकों में किया जाना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति का और भी सभी क्षेत्रों में विकास हो। इस मौके पर वार्ड के पार्षद सुष्मिता बावरी, सेजल चटर्जी, आशीष घोष, देवदास घोष, तन्मय घोष, उज्जवल चौधरी, डॉक्टर डीपी रॉय चौधरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शुभ दिने हमारे पूरा देश रथ यात्रा पे उपस्थित হয়েছে। जगह जगह रथ भगवान जगन्नाथের आयोजित হয়েছে। সেই দিনে চণ্ডীপুর গ্রামবাসী, বিশেষ করে এখানে যে কমিটি আছে, কত ভালো জিনিস আয়োজন করেছে। খুব ভালো লাগছে। দেখুন, আমরা তো হিন্দু সংস্কৃতিতে আমাদের প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামে কিছু না কিছু ধার্মিক আয়োজন আছে, যেখানে নাম হরিকীর্তন হয়, যেখানে খিচুড়ি ভোগ হয়। দেবদেবীরা এ কথা সহজে শুনতে পায় না, এমন কথা। শ্রীমদ্ ভাগবতী বার্তা সুরনামপি দুর্লভা, সুরনামপি দুর্লভা। তো কৃপা করে আমাকে সেই কথা শোনান। আমি খুব আগ্রহী সেই কথা শোনার জন্য। আমার জীবনকে তৃপ্ত করুন সেই ভগবানের অমৃতময় কথা শুনিয়ে। তো মহাদেব বলছেন, দেবী আমি শোনাতে তো পারি, কিন্তু এই কথা। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पश्चिम बंगाल पेंशनर्स एसोसिएशन के पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी की तरफ से बुधवार को जामुड़िया के थाना मोड़ स्थित डाकघर में पावर हाउस, जो पहले डीसरगढ़ पावर सप्लाई था, अभी वर्तमान समय में इंडिया पावर के नाम से जाना जाता है, उनके 54 कर्मचारियों द्वारा पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डालकर डाकघर का चिट्ठी को प्रधानमंत्री को भेजा गया। इस मौके पर संगठन की ओर से तापस कवि ने कहा कि गैर सरकारी कंपनियों के पेंशन भाग्यों के लिए न्यूनतम 9,000 रुपए हैं। उसे पेंशन में बिना मूल्य राशन की सुविधा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, ट्रेनों में यातायात करने के दौरान रियायत सहित विभिन्न मांगों को लेकर उस चिट्ठी में उल्लेख कर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। पूरे भारत में लाखों पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से प्रत्येक सामान की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह से पेंशन की भी भुगतान बढ़नी चाहिए। साथ ही तापस कवि ने बताया कि उनकी यह संगठन व राजनीतिक संगठन है, इसमें सभी दलों के लोग हैं जो भी पेंशन धारक है वही इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं। फिलहाल ज्यादातर डीसरगढ़ पावर सप्लाई के 273 कर्मचारी इस संगठन के सदस्य हैं। প্রধানমন্ত্রীর কাছে ড্রপ করবে, যেখানে প্রত্যেকেই তার পিপিও নাম্বার দিয়েছে, কত পেনশন পাচ্ছে। যেমন ধরুন এখানে একজন আছে আশুকোরা 2000। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बहुला अंचल के पद्मावती मंदिर में पंचायत चुनाव के लिए बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के सभी प्रार्थी ने मिलकर पूजा कर चुनाव प्रचार आरंभ किया। इस दौरान बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह ने कहा कि हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मां पद्मावती मंदिर में आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसी प्रकार भी आज हम लोगों ने यहां आकर पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोगों के प्रति चाहत है, इससे यह पता चलता है कि बहुला पंचायत तृणमूल कांग्रेस के हक में ही रहेगी। इस दौरान बहुला अंचल सभापति उत्तम मरधा, प्रसून बैनर्जी, कृष्णा भुइया, राजकुमार पाल, छोटन ओद्दा, बहुला ग्राम पंचायत के सभी उम्मीदवार मुख्य तौर से उपस्थित रहे। पंचायत के अंदर में तृणमूल कांग्रेस का जो क्षमता है, तृणमूल कांग्रेस का जो लोगों के ऊपर में जो चाहत है, बहुला पंचायत ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस का झोली में चला गया है। हम लोग माँ के पास में आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए कि माँ हम लोग इतना शक्ति दे कि हम लोग जब बहुला ग्राम पंचायत में बोर्ड बनाएं तो यहाँ के लोगों का हम लोग काम कर सके। माँ हम लोग को सुस्त रखे, हम लोग को परिवार को सुस्त रखे, सर्वोपरि ममता बंदोपाध्याय को सुस्त रखे, हम लोग के विधायक नरेंद्र को सुस्त रखे। हम लोग इसीलिए हम लोग आए हैं। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग के बहुला ग्राम पंचायत में जो तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार लोग हैं, पंचायत समिति का, पंचायत का जो भी उम्मीदवार हम लोग हैं, हम लोग माँ के दरबार में माथा टेक के आज से हम लोग काम अपना प्रचार शुरू किया। लेकिन हम लोग का प्रचार आज से शुरू नहीं है। हम लोग का प्रचार जिस दिन से हम लोग कैंडिडेट में नाम घोषणा, उस दिन से हम लोग का प्रचार चल रहा है। यहाँ पे सीपीएम बीजेपी को लोग सोचना पड़ेगा कि कहाँ से वो लोग वोट लाएगा। कैंडिडेट नहीं मिला सीपीएम बीजेपी को, सीपीएम का कैंडिडेट नहीं मिला। सुन के हंसी लग रहा है कि एक घर में कोई बहू को, कोई दामाद को, कोई बेटी को खड़ा कर दिया। तो इस अवस्था में तो हम लोग वोट बना के बैठे हुए हैं। और आप लोग जानते हैं कि बहुला ग्राम पंचायत में 5-5 सीट ऑलरेडी निर्विरोध हो गया। यहाँ पर कहाँ पर किसी का स्थान, किसी का विधानसभा में खनी अंचल में बहुत ज़्यादा ध्यान पांडेश्वर जो शिल्पांचल है, जो खनी अंचल है, यहाँ के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते हम यही बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से 2011 से बंगाल में जो आमूल परिवर्तन हुआ, আমাদের সারা পশ্চিম বাংলায় যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেসব আমাদের জেলা পরিষদের প্রার্থী, সমিতির প্রার্থী এবং পঞ্চায়েতের প্রার্থীরা যাতে বিপুল ভোটে জয়ী হয়, তার জন্য আমরা আজকে বহুলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস
আমাদের এই মা পদ্মাবতী স্থানে আমরা জমায়েত হয়েছি এবং মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সারা পশ্চিমবাংলার যে তৃণমূলের প্রার্থী তাদেরকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আমরা মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছি। আমরা বহুলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত প্রার্থী, আমাদের জেলা পরিষদের প্রার্থী মাননীয় অনুভা চক্রবর্তী এবং আমাদের 3টি সমিতি প্রার্থী এবং 23টি পঞ্চায়েত প্রার্থী, আমাদের টোটাল 27টি বহুলা অঞ্চল তৃণমূলের যে প্রার্থীকে বিজয়ী বিপুল ভোটে বিজয়ী করার জন্য আমরা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা আগামী কাল থেকেই আমরা বাড়িতে বাড়িতে প্রচারে নিয়ে যাব। আর আমরা বহুলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত নেতৃত্ব এবং মহিলা, যুব, মাইনরিটি, এসসি সেল সমস্ত এক জায়গায় আমরা একত্রিত হয়ে আমরা লড়াই করব এবং লড়াই করে আমরা সারা पांडेवेश्वर विधानसभाएं। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 1 स्थित मदनतोड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत सीट नंबर 5 पर इस पंचायत समिति पर तृणमूल कांग्रेस को जीत आसान नहीं है। इसी सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अनिमेष बैनर्जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिला किया और इसी ग्राम पंचायत समिति से भाजपा के उम्मीदवार जय गणेश सिंह भी अपने शानदार जीत हासिल करने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसलिए ये राह शासक दल के उम्मीदवार को इस सीट पर जीत हासिल करना उतना आसान नहीं है। जब इन दोनों से बात की गई तो इसे लेकर जानकारी देते हुए मदनतोड़ ग्राम पंचायत समिति के भाजपा उम्मीदवार जय गणेश सिंह ने कहा कि हम लोग भाजपा के सैनिक हैं। इतने सालों में इस ग्राम पंचायत इलाके में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय और तालाब कटाई में केवल तृणमूल कांग्रेस के लोग द्वारा इन सभी ने दुर्नीति हुआ है। इसी सीट पर तृणमूल कांग्रेस के 2 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन जो पहले इस सीट पर अपना पर्चा जमा किया था उन्हें ना देकर अचानक दूसरे लोगों को ये सीट दे दिया गया। साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। वहीं इसे लेकर जानकारी देते हुए पंचायत समिति के उम्मीदवार अनिमेष बैनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद भाजपा और माकपा का अस्तित्व खत्म हो चुका है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वोट कराने में विश्वास रखते हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद ग्रामीण इलाके में रास्ता, बिजली, पानी, तालाब की खुदाई एवं गरीब लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिन कार्य का रोजगार, इसके अलावा जो हमारे विरोध में इस ग्राम पंचायत चुनाव में खड़े हुए उसे राज्य सरकार की ओर से सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जा रहा है। एवं साथ ही उन्होंने और भी कई बातें की। हम लोग तो मोदी जी के सैनिक हैं। हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव है जो आपका दुर्नीति है उसको रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए। और वो लोग जो खड़ा हो रहे हैं वो लोग चोरी करने के लिए खड़ा हो रहे हैं। इसीलिए आपस में देखिएगा झंटू मंडल जो कि जिसको टिकट मिल गया था, आज दीवार में लिखा भी हो गया था, लेकिन उसके बदले में दूसरे को मिल गया। जो आपका मेरा जो बापटूदा है, अच्छा है बापटूदा, अनिमेष बनर्जी है। पहले झंटू मंडल मिला था, इसके बाद अनिमेष बनर्जी को मिला। इसी में पता चलता है कि ये जो लोग हैं अभी, ये लोग चाहते हैं कि 5 साल अगर रह गया सत्ता में तो हम लोग को 5 साल देखने नहीं चाहिए, एकदम पूरा, मतलब 5 साल में माला माल हो जाएंगे। और हम लोग जो है, हम लोग दुर्नीति रुकने के लिए है। आप अगर देखिएगा, अब देखें आप पूरा ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो जिसका आपका ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसको मिला नहीं। आप कभी भी पूरा इलाका घूम सकते हैं, मंडलवान नहीं मिला। किसको मिला? जिसका मकान है उसको मिला। अब देख के आइए, हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, उसमें पता चला, आप देखें कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जिसको घर मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, ज़्यादा से कट मनी में गया। तो ये लोग खड़ा हो रहे, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग को कोई डर नहीं है। हो सकता है किसी को धमकाने चमकाने की कोशिश किया, लेकिन
उतना दम नहीं है कि हमको डरा देंगे, धमका देंगे। हम लोग उसमें हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम लोग भाजपा के हैं, हम लोग मोदी जी के सैनिक हैं, और हम लोग डट से मुकाबला करेंगे। अगर आदमी ठीक से वोट दे पाए तो PS5 से हम लोग विजय होंगे। आपका नाम? जयगन सिंह, जमरे मंडल 1 के प्रेसिडेंट। भाजपा CPM हम लोग का अंचल में इतना नहीं है कुछ, ठीक है, जो है वो एक ही है और कुछ नहीं है। और दीदी का जो उन्नयन है, वो उन्नयन का भागीदार वो भी है। देखिए उसका घर में पूछिए ना जाके, स्वास्थ्य साथी है, लक्ष्मी भंडार है, ये सब तो फैसिलिटी दीदी के उन्नयन से होता है। तो आदमी जो देखेगा वहाँ का, जो सोचेगा, वो तृणमूल छोड़ के किसी को पहचानता नहीं। देखिए ना कितना विकास हुआ, अभी भी काम चल रहा। जो पदश्री जो रास्ता है, ढला रास्ता हुआ, गांव का जितना ढला रास्ता वो हो गया, ड्रेन हो गया, और कितना उन्नयन चाहिए बोलिए। दीदी का उन्नयन तो लगातार रहता है। अभी रिसेंट जो पथश्री है वो भी काम चल रहा, बड़ा काम। जो जितना काम है बाकी है वो हम कर देगा, कारण कि हम अगला पीछे 5 साल हम कर्मदक्ष थे, पंचायत समिति का मेंबर थे। अब जाके देखिए ताराडंगा, मोदूडंगा, मोदंतर में अब लोग जाकर सब मालूम चल जाए क्या काम हुआ। कुछ भी काम नहीं है, इतना 34 साल में काम नहीं हुआ जो हम करके दिखाए हैं। दीदी का आशीर्वाद से हम बहुत सारे कर दें। अगला जो आशीर्वाद हमको आने जा रहा, वो हम जो जितना जो है हम कंप्लीट कर देते हैं। आपका नाम? अनिमेश बनर्जी। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। रानीगंज ब्लॉक के तराड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत नीमचा इलाके के भुइया पाड़ा के निवासी चिंता कुमारी, जिन्होंने पंचायत चुनाव में नीमचा के 17/20 नंबर बूथ से निर्दलीय के रूप में ग्राम पंचायत के लिए नामांकन जमा किया था, जिसके बाद स्क्रूटनी होने के बाद निर्दलीय प्रार्थी के रूप में उनका नाम लिस्ट ब्लॉक कार्यालय से बाहर टंगा हुआ था। परंतु इलेक्शन पोर्टल वेबसाइट पर फाइनल लिस्ट आने के बाद मंगलवार को उनका नाम साइट पर नहीं देखा गया। नीमचा के 17/20 बूथ से तृणमूल प्रार्थी विकास कुमार सिंह खड़े हैं, जहां से किसी दल ने अपना प्रार्थी खड़ा नहीं किया। सिर्फ चिंता कुमारी ने निर्दलीय प्रार्थी के रूप में नामांकन जमा किया था, परंतु अब लिस्ट में उनका नाम नहीं होने से नियमानुसार तृणमूल प्रार्थी निर्विरोध जीत दर्ज करेंगे। रानीगंज BDO प्रशासन का कहना है कि चिंता कुमारी मंगलवार को BDO कार्यालय आकर सीट से अपना नाम विड्रॉ की। विड्रॉल पेपर पर चिंता कुमारी के हस्ताक्षर है, परंतु चिंता कुमारी का कहना है कि वह BDO कार्यालय नहीं आई थी, ना ही उन्होंने किसी पेपर पर साइन किया है। फिर किस तरह से मेरा सीट विड्रॉ हो गया? इस विषय को लेकर चिंता कुमारी नीमचा इलाके के अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बुधवार को रानीगंज BDO कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने लगी एवं BDO अभीक बैनर्जी के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात रही। बुधवार की सुबह से ही कार्यालय में BDO अभीक बैनर्जी अनुपस्थित रहे। चिंता देवी एवं उनके समर्थक BDO का इंतजार करते रहे, परंतु कार्यालय पर वह नहीं आए। वहीं दूसरी ओर चिंता कुमारी के समर्थन करने तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सिंटू भुइया BDO कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है कि हमारे भुइया समाज, जो कि तृणमूल को समर्थन करती है, वह किसी कारणवश निर्दलीय प्रार्थी के रूप में नामांकन जमा की, परंतु उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। मेरा जो नॉमिनेशन था वो हटा दिया गया है। कल तक था, पर कल शाम को हमको पता चला कि मेरा नॉमिनेशन हटा दिया। अब कहाँ से खड़े हुए थे? আমাদের একজন ক্যান্ডিডেট আছে চিন্তা কুমারী, উনি তিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পার্ট নম্বর 17/20 থেকে নমিনেশন করেছিলেন অ্যাজ এ নির্দল ক্যান্ডিডেট। আরও ওই বুথে আরও 3 জন নমিনেশন করেছিলেন। কোনোভাবে আমরা দেখতে পাই কালকে আমি যে BDO অফিসের নোটিফিকেশান চেক করলাম, 17 তারিখে ক্যান্ডিডেটের যে নমিনেশন সেটা সাকসেসফুলি নেওয়া হয়েছে, সেটার নোটিফিকেশান BDO নোটিশ বোর্ডে টাঙানো আছে। তা সত্ত্বেও কালকে আমরা যখন অনলাইনে চেক করি, ক্যান্ডিডেটের কনসেন্ট ছাড়া হাইকোর্টের অর্ডার থাকা সত্ত্বেও BDO সাহেব ক্যান্ডিডেট আসেনি, তা সত্ত্বেও জালি সই করিয়ে BDO সাহেব ক্যান্ডিডেটের নমিনেশনটাকে ফেরত নিয়েছেন। আমরা এখন জানতে চাই BDO সাহেবকে এই পাওয়ারটা দিল কে? হাইকোর্ট কি হাইকোর্টের ওপরে কি BDO সাহেব? সেটা আমরা জানতে চাই আজকে। বললে আমাদের ভূঁইয়া সমাজ, SST সমাজের সম্প্রদায়ের লোক তিনারা আছেন এখানে, কয়েকশো লোক এসেছেন এখানে।
আমার কাছে মাত্র কিছুক্ষণ আগে জানতে পেলাম কি ওনাদের কোনো নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা নিয়ে ওনাদের কোনো অভিযোগ আছে। আমি দলগত থেকে জানলাম বা এখানে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেলাম কি সব প্রসেসে করা হয়েছে। তবে সঠিক জিনিস জানার জন্য বিডিও সাহেব বলতে পারবেন কি সঠিক জিনিসটা হয়েছে কি বা সঠিক জিনিসটা কি। তাছাড়া তো আমি বিডিও সাহেবের কাছে জেনে আপনাদেরকে খবর দেবো কি এই হয়েছিল। না, বিডিও সাহেবের সঙ্গে কোনো কথা নেই, বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি বিডিও অফিসে আসি আজকে কি স্যার কী ব্যাপার আছে এটা জেনে আমাদের দলকে যদি এরকম কেউ বলে, আমাদের দল তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সব দল দাঁড়াবে, সব মানুষ দাঁড়াবে, ভোট হবে, নির্বাচন হবে, সেই পদ্ধতিতে আমরা কাজ করছি। কিন্তু কোনো মানুষের যদি অসুবিধা হয়ে থাকে তার জন্য আমরা জেনে পদে কথা বলে তার অসুবিধা বুঝে নেব। কিন্তু আমরা সূত্র মারফত জানতে পারছি যিনি নির্দল প্রার্থী বলছেন উনি তৃণমূলেরই ক্যান্ডিডেট ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি বলছেন আমি নির্দল থেকে দাঁড়িয়েছি। এটা কি তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব? কোচ প্রার্থী হিসেবে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এইবারে মানুষ এখানে বাংলাতে 90% মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস মানুষ। হয়তো এত বড় ঘরকে আমরা ঠিক করে রাখতে পারছি না, রাগ হতেই পারে। তার মানে আপনি স্বীকার করছেন যে যিনি নির্দল হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি তৃণমূল? যিনি নির্দল না, এখানেকার 11 কোটির মানুষের মধ্যে 10 কোটি মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের মানুষ। এত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে, কেউ নির্দল হয়েও বলছে কি আমি টিএমসির লোক। এই জিনিসটা বুঝতে হবে আপনাকে। কেউ দেখুন ওনার ভাবনা বিক্ষোভ করে নয়, হয়তো কোনো কারণবশ আমি জানি না ভিতরের, এটা তো আমাদের কি ব্যাপার।